How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the 8th chapter of class 2nd Computer, which is about Introduction to MS Paint. So today, students, we will learn about this very interesting software known as MS Paint, Microsoft Paint. Let's start the chapter. First of all, we have given with some steps of opening a paint program. एक पेंट प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है. सो स्टूडेंट, फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे यू विल चूज ऑल प्रोग्राम्स एंड ऑल प्रोग्राम्स के अंदर यू हैव टू चूज पेंट प्रोग्राम, ठीक है. सो पेंट प्रोग्राम चूज करने के बाद दिस विल बी अ टाइप ऑफ विंडो विच विल अपीयर एंड दिस इज द MS पेंट विंडो. ओके. So, what are the parts of a paint window? Paint window के क्या क्या parts हैं? So students, paint window divided होती है कुछ main parts में. Number 1, title bar. Title bar कहाँ होता है? The blue bar at the top of the screen. Paint window screen के सबसे top पर जो blue colored bar present है, that is called title bar. And ये क्या करता है? उस program के name को and file name को display करता है. Title bar. Okay? देन वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर वो सारे बटन्स हैं जिसके थ्रू हम कॉमन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. पेंट बटन में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं टू वर्क इन पेंट. देन रिबन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. रिबन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. टैब क्या है? ईच टैब कंटेन टूल्स. हर एक टैब के अंदर वो टूल्स है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज्ड होंगे. देन ग्रुप होता है रिलेटेड कमांड्स का सेट. And commands आपके instructions हैं which are given to a computer. Next we have drawing area. Drawing area covers the major part of the paint window. पूरी paint window का जो major part है वो drawing area ही होता है, जिसको हम colorful drawings बनाने के लिए use करते हैं. We know how to make simple drawing. जैसे कि हमें पता है कि हम किस तरीके से पेंट पर simple drawings बना सकते हैं. किन का यूज़ करके? commands का यूज़ करके, जो present होते हैं in the home tab on the ribbon. ठीक है. रिबन में होम टैब पे जो सिंपल कमांड्स हैं उनका यूज़ करके आप बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स या सिंपल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ होम टैब में स्टूडेंट्स लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, फिल विद कलर एक्सेट्रा, ये सारी मेन शेप टूल्स होते हैं MS पेंट के. सो नाउ लेट अस नो अबाउट द कमांड्स इन टूल्स, शेप्स एंड कलर्स ग्रुप. ठीक है. सो टूल्स ग्रुप के अंदर डिफरेंट टूल्स एंड ब्रशेस होते हैं through which we could draw the pictures. You could see ये आपका tools group है, ये shapes group है and ये colors group है. Okay? Shapes groups के अंदर different ready-made shapes होती हैं and color groups के through आप pictures में colors fill करते हैं. ठीक है. Some important tools यहाँ पे आप में tools group के कुछ important tools given है. Number 1 we have pencil tool. इसका यूज़ किया जाता है for drawing or writing anything with a free hand movement. एक free hand movement के through आपको कुछ draw करना है, you want to write anything, so you have to use this pencil tool for that. Secondly, we have eraser tool, जिसका यूज़ करते हो आप किसी भी picture या text के part को erase करने के लिए. Then magnifier tool का यूज़ किया जाता है drawing को larger size में देखने के लिए. And brushes के अंदर different kinds of brushes होते हैं जिससे हम एक free hand movement को draw कर सकते हैं. So first of all, let's discuss about line tool. So line tool का यूज़ किया जाता है to draw straight and curved lines. ठीक है. तो straight line draw करने के लिए first of all हम home tab पे click करेंगे. After that you will click on the line tool जो कि shapes group में present होगा. And then आपको drawing area पे click करना है, mouse को drag करना है to another place. And जैसे ही आप drag करेंगे mouse को, a line will be drawn somewhat like this. Then next we have what? Rectangle tool. Rectangle tool के through students you could draw rectangles and squares. So what are the steps to be followed? Number 1, again home tab पे click करेंगे. Shapes group में rectangle tool पर click करना है and drawing area पे click कर अपने mouse को हमें another place तक drag करना है so that a rectangle will be drawn. Same steps हैं, बस इस बार tool का selection depend करता है कि आप किस तरह की shape draw करना चाह रहे हैं. See, then they have given you circle tool. ठीक. सर्कल टूल के थ्रू हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल्स एंड ओवल्स को.
सो अगेन द सेम स्टेप कि हम पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे. सेकेंडली शेप्स ग्रुप में जाकर दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन द ओवल 2. द ओनली चेंज इज दैट. उसके बाद अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड माउस को ड्रैग करेंगे टू द अनदर प्लेस. सो जब आप ड्रैग करोगे, एज यू विल ड्रैग योर माउस, द सर्कल विल बी ड्रॉन. यू कुड सी लाइक दिस. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव कर्व टूल. इसका यूज किया जाता है टू ड्रॉ दी कर्व्स. सो इसके लिए हमें क्लिक करना है कर्व टूल पर, जो अगेन शेप्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा. एंड देन यू कुड सेलेक्ट द कलर ऑल्सो. कौन सा कलर का कर्व आपको ड्रॉ करना है, कितनी थिकनेस आपको चाहिए, यू कुड सेलेक्ट इट. एंड देन ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया. उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर लेकर आएंगे, माउस को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे पॉइंटर को लाइन ड्रॉ करने के लिए. देन आपको पॉइंटर को मूव करना है उस पॉइंट पर जहाँ पे आप एक कर्व ऐड करना चाहते हैं. एंड देन क्लिक एंड ड्रैग द लाइन. उसके बाद लाइन को क्लिक एंड ड्रैग करना है कर्व ड्रॉ करने के लिए. इफ यू वांट इस तरीके से आप अपने कर्व को मॉडिफाई भी कर सकते हैं इन द सेम वे. ठीक है, वे हियर वी हैव ड्रॉन अ बोट यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइंस एंड कर्व्स का यूज करके उन्होंने बोट ड्रॉ करी है. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव फिल विद कलर टूल. सी टू फिल द बोट बेस. अब यहाँ पे जो बोट हमने ड्रॉ करी थी, हम इस बोट के बेस को ब्लू कलर से फिल करना चाहते हैं. सो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द ब्लू कलर इन द कलर्स ग्रुप. ठीक है, आप अपने माउस पॉइंटर को कहाँ ले जाएंगे, कलर्स ग्रुप में ब्लू कलर पे लेके जाएंगे एंड उस पर क्लिक करेंगे. एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे फिल विद कलर टूल को. उसके बाद अगेन माउस पॉइंटर को बोट के बेस पर लेके आना है एंड सिंपली क्लिक वंस. सो वो बोट बेस आपका ब्लू कलर से फिल हो जाएगा. सिमिलरली आप जो बोट का अपर पार्ट है वहां पे भी अपनी चॉइस के कलर्स को फिल कर सकते हैं एज यू हैव शोन यू इन द फिगर. नेक्स्ट यू हैव व्हाट, सेलेक्टिंग द फोरग्राउंड कलर. सो फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 आपको क्लिक करना है कलर 1 बटन पे. एंड देन क्लिक करेंगे हम ब्लू कलर पे, जो कि हमारे कलर्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा बिकॉज उसे हम एज अ फोरग्राउंड कलर चूज करना चाहते हैं. एंड देन आपको सेलेक्ट करना है फिल विद कलर टूल को. दिस इज द फिल विद कलर टूल. एंड देन आप फिल करेंगे अपनी बोर्ड को विद दैट कलर. नेक्स्ट वी हैव अबाउट सेलेक्टिंग द बैकग्राउंड कलर. सी, अब बैकग्राउंड कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए नंबर 1 क्लिक द कलर 2. कलर 2 क्लिक करना है. देन ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे इन द कलर्स ग्रुप बिकॉज वी वांट टू सेलेक्ट इट एज द बैकग्राउंड कलर, राइट. देन आपको अगेन फिल विद कलर 2 सेलेक्ट करना है. एंड देन बैकग्राउंड पार्ट जो है हमारी स्क्रीन का, उस पर राइट क्लिक किया जाएगा टू फिल द ग्रीन कलर एज अ बैकग्राउंड. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, यूजिंग इरेजर टूल. सी, इट इज पॉसिबल टू इरेज द होल और एनी पार्ट ऑफ अवर ड्राइंग इन पेंट. ठीक है, पेंट में जो आपने ड्राइंग करी है उस पूरी ड्राइंग को या उसके किसी पार्ट को आप बहुत इजीली इरेज कर सकते हैं. So if you want to erase the whole or part of a drawing, then follow the given steps. Number 1, step 1 है कि हम eraser tool पे क्लिक करेंगे, जो कि tools group में present होता है on the ribbon. Then आपको अपनी eraser को move और you could say you have to drag the eraser अपनी drawing के उस part पर जिसे आप erase करना चाहते हैं. Next we have saving the drawing. So suppose we want to store the drawing which we have created in our computer. The storing of any work in the computer is called saving. What they're saying कि आपने जो drawing create करी कंप्यूटर पर, आप उसको सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं. सो कंप्यूटर पे किसी भी वर्क को स्टोर करना इज नोन एज सेविंग. ठीक है, सो एक पेंट प्रोग्राम में फाइल को सेव करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप. सिंपली आपको पेंट बटन पे क्लिक करना है एंड देन एक मेन्यू अपीयर होगा. उस मेन्यू में यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. सो एक न्यू विंडो जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं वो अपीयर होगी. तो उसमें आपको फाइल नेम बॉक्स के अंदर उस नेम को टाइप करना है जो आप अपने ड्राइंग को देना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. तो आपकी ड्राइंग एज अ फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी. ओके, चलो देन ओपनिंग अ सेव ड्राइंग. सो वी नो हाउ टू सेव अ वर्क. अभी हमने सीखा कि अपने वर्क को एज अ फाइल हम कैसे सेव कर सकते हैं. नाउ वी विल लर्न कि हम कैसे एक सेव्ड पेंट फाइल को ओपन करेंगे. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है ऑन द पेंट बटन. ओके, इस पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें आपको ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है सो दैट वहाँ पे एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो. देन आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे विच यू वांट टू ओपन एंड देन क्लिक द ओपन बटन.
so that file will be opened. Last we have what closing paint. So when we have completed our work, जब आप अपना work complete कर लेते हैं, so आपको क्या paint program को close भी करना है. So for that, the simple step is what? Click on the paint button and then click on exit option. So paint program आपका close हो जाएगा. Okay? चलो. Now next we come to what? Darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, MS Paint is a basic dash program. MS Paint एक basic सा क्या program है student? Graphic program है. Okay? चलो. So this is what? Option C. Second, dash is a set of related commands. Related commands के set को what we call? We call it what? Group. Okay, group is a set of related commands. Option B is correct. चलो. Then we have dash consists of 3 parts. ठीक है, किसके अंदर 3 parts होते हैं? Tabs, groups and command. That is what? Ribbon. ठीक है, ribbon consists of 3 parts: tabs, group and command. Option A. नेक्स्ट, वेयर डू यू क्रिएट योर ड्राइंग्स इन पेंट? पेंट में अपने ड्राइंग्स कहाँ क्रिएट करते हैं स्टूडेंट? ड्राइंग एरिया पे. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड द लास्ट, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच टूल शुड यू यूज? ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन से टूल का यूज करेंगे? दैट इज लाइन टूल. ओके, अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलो. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. Okay. चलो. नंबर 1, डैश टूल इज यूज्ड टू फिल कलर्स इन अ ड्राइंग. ड्राइंग में कलर्स फिल करने के लिए हम कौन से टूल का यूज करते हैं? वी यूज फिल विद कलर टूल. ओके. चलो. सेकेंड, डैश टूल इज फाउंड इन द शेप्स ग्रुप. ठीक है, कौन सा टूल है जो आपके शेप्स ग्रुप में फाउंड किया जाता है? दैट इज लाइन टूल. नेक्स्ट, डैश कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो. पेंट विंडो का मेजर पार्ट कौन कवर करता है? ड्राइंग एरिया. राइट. सो ड्राइंग एरिया कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो. नेक्स्ट, द ब्लू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के टॉप पर जो ब्लू बार प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज टाइटल बार. ओके. And the last, the dash group contains different ready-made shapes. कौन से ग्रुप्स के अंदर different ready-made shapes होती हैं? That is shape group. Simple. चलो. Next we have write true or false against each statement. Number 1, the gray bar. Screen के top पर जो gray bar present होता है that is known as title bar. False. Title bar is of blue color, not of gray color. Secondly, eraser tool is used for erasing any part or for picture or text. किसी भी पिक्चर और टेक्स्ट के पार्ट को इरेज करने के लिए आप इरेजर टूल का यूज करते हैं. ट्रू. कर्व कैन बी मॉडिफाइड. कर्व को हम केवल 3 टाइम्स मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉल्स. देन ड्राइंग एरिया कंटेन टूल्स. ड्राइंग एरिया के अंदर वो टूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज होंगे. फॉल्स. एंड द लास्ट, रिबन. रिबन कंटेन्स टूल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. रिबन्स के अंदर टूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज हैं. फॉल्स. अगेन, रिबन के अंदर टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स होते हैं. ओके. चल. नाउ मैच द फॉलोइंग. टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है स्टूडेंट? टाइटल बार आपका प्रोग्राम नेम को डिस्प्ले करता है. ऑप्शन. ठीक है. सेकेंड, रिबन. रिबन के अंदर टैब्स एंड कमांड्स होते हैं. देन वी हैव ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया आपका ड्रॉ एरिया होता है. इरेजर टूल. इरेजर टूल से आप क्या करेंगे? कोई भी पिक्चर के पार्ट को, पूरी पिक्चर को या टेक्स्ट को इरेज करेंगे. एंड फिल विद कलर टूल का यूज किया जाता है शेप्स को कलर से फिल करने के लिए. ऑलराइट. चलो. नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय MS पेंट? MS पेंट क्या है स्टूडेंट? MS पेंट एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है बाय विच वी कैन ड्रॉ द सिंपल पिक्चर्स एंड कलर देम एज पर आवर own wish.
Which button shows the background color? See student, they have given you a question कि background color कौन सा बटन शो करता है? Wait. Okay. So the color 2 and the green color in the colors group as the background color. So simply जो colors group है, it will show you the what background color. Color 2 वाला जो group होता है ना, right over here, कि which button? तो colors button. Colors group के अंदर आपको मिलेगा background color का button. Explain the two parts of a paint window. Okay, कोई भी two parts आपको paint window के explain करने हैं. So you could explain any two parts. That is number 1 drawing area. Drawing area आपका वो large white space है which we used for drawing or text, writing text. Okay, then we have ribbon. The ribbon contains what? Tab, groups and commands. When do you use eraser tool in paint? Paint में eraser tool का use हम student कब करते हैं? To draw any part or the whole picture or any kind of text which we have written in the drawing area. So to erase it, we use this eraser tool. What is the use of quick access toolbar? Quick access toolbar का use क्या है? It is used to perform some common tasks in a quick manner. What is a drawing area? Drawing area is a large wide space where we draw the picture, simple pictures. Alright? That's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood the basic of MS Paint. So now let's meet in the next session very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.